Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? आपको पता है मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे यही पूछती हूँ आप लोग कैसे हो, बिकॉज पढ़ना, नोट्स बनाना that is secondary. You need to feel good. If you are feeling good, energetic, you're feeling your best, तो everything will be easy. आपके लिए studies journey of the UPSC will become easy. But अगर आप किसी तरह से depressed हैं, worried हैं, tension में हैं, you're taking load on your mind and body, then it will be difficult for you, and you will give up in between, because this journey is it's long journey. You will give up in between. So that is why I ask you all in my every video how you all, so that if you're not well, please do share. हम सभी यहाँ एक दूसरे को हेल्प करने के लिए भी हैं, ना कि जस्ट एक नोट शेयर करके लेक्चर देके चले जाने के लिए और आप सुन के. I will definitely help you out if you have any problem. So tell me in the comment section what is the issue, and if you're good, then also give a heart. So as you all know, on this channel I share with you all my own notes so that you get an idea as to how you can make short, crisp and meaningful notes on different subjects, जो कि both prelims and mains examination में आपको help करेगा. अगर आप मेरे नोट से गाइडेंस लेकर अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको इसे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज एंड मेमोराइज करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. ऑल्सो इफ यू स्ट्रगलिंग टू मेक नोट्स ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे नोट्स बनाएं, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑन दोज एज वेल. Before starting the video, I will request you all with fold in hand, please like, share and subscribe the channel and help me. आपका बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा, but आपका एक like, it will help the YouTube algorithm to understand. Okay, so it will make it accessible to more aspirants like you जो कि lost हो जा गए हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं. उनको समझ नहीं आता कि आंसर राइटिंग कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, कैसे याद रखना है और कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, कितना पढ़ना है, वो सब इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा. तो प्लीज डू लाइक. सो लेट्स स्टार्ट. Today's topic that I've got is running water and associated formation. This is a geography topic that I've got for you. So running water and associated formation. तो हम ये एक series of videos I will bring it for you, different kind of different kind of एक्शंस होते हैं और उससे डिफरेंट जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं उससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेशन होते हैं. तो वो हम देखेंगे कि डिफरेंट, जैसे हम देखेंगे कि जो अंडरग्राउंड वाटर फ्लो है उससे क्या फॉर्मेशन होता है, सैंड डेजर्ट्स में क्या फॉर्मेशन होती है, विंड के मूवमेंट से क्या लैंड फॉर्म्स होते हैं. तो सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स. सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग विथ यू running water and its associated formation. All right. तो ये तो just you need not to write in your notes. ये just आपके समझने के लिए है. ये मैंने ऐसे लिख लिया so that I don't forget, because so much of information is there. तो हम भूल जाते हैं कभी कभी. तो just quickly I will just let you know what is this solution. Dissolved material salt carries with the water. जो पानी में जो रिवर फ्लो करती है वो अपने साथ जो भी डिजोल्व मटेरियल लाती है, राइट, salts या dissolved material which cannot be segregated normally, तो उसको बोलते हैं solution. Suspension क्या होता है? Undissolved smaller particles lifted and carried. Example sand, silt, clay. तो ये इसमें water में dissolve नहीं होते हैं, but water क्या करता है, इसको river क्या करती है, lift करती है और अपने साथ carry करती है. But these are very small and fine particles. उसको suspension बोलते हैं. और थर्ड चीज रिवर अपने साथ क्या कैरी करती है, bed load. Why we are doing these things? Because these things lead to the formation. जो associated formations होते हैं, जो भी बनता है, delta, and the meandering, different things happens because of these. What kind of load it is carrying at what point of stage or at what point of stretch of its journey. So bed load क्या है? Bed load is further been divided into two parts, saltation and traction. Saltation क्या है? Smaller particles will bounce and move, क्योंकि एक force होता है ना river का. तो river is very ferocious. Rivers are very ferocious. They have a force. तो थोड़ा भी force रहेगा, they will move big things. Saltation क्या होगा?
स्मॉलर पार्टिकल्स जो है वो बाउंस करेंगे। ये क्या है, सस्पेंशन में क्या है, ये लिफ्ट करती है और कैरी करती है अपने साथ सैंड, सिल्ट और क्ले उठा के, मतलब लिफ्ट करके ले जाती है। सॉल्टेशन में क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो खुद ही बाउंस होके उसके साथ वाटर के साथ मूव करते रहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या है, लार्जेस्ट विल बी कैरीड बाय रोलिंग ओवर लाइक रॉक्स, बोल्डर, स्टोन्स। ये क्या है, बाउंस करते हुए चले जाएंगे। और ये क्या है, ये रोल ओवर करके जाएंगे, ऐसे रोल ओवर करके करके फिर आगे रिवर के साथ मूव करेंगे। सो दीज थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर ये नहीं समझ में आएगा ना तो आप इसकी स्टेज नहीं समझ पाएंगे। जो एक रिवर का डिफरेंट स्टेज होता है, डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ और मेच्योरिटी, और वो अगर वो समझने के लिए ये आपको इसके जो जार्गन्स है उसका मतलब समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेशंस दे विल मेक। So this is the mountain. Here I am taking the example of Indo-Gangetic Plain. तो क्या फॉर्म करेगा, दिस इज द माउंटेन। ओके, माउंटेन है हिमालयाज। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोइंग रिवर। फ्लोइंग रिवर ये यूथफुल स्टेज है। यूथफुल स्टेज में क्या होता है, इरोजन होता है। वाई, यूथफुल स्टेज में होती है वेरी हाई स्पीड, स्पीड बहुत हाई होती है, वेरी हाई कैरिंग कैपेसिटी एंड इट इरोड्स एवरीथिंग। इसीलिए आप माउंटेन्स, जब आप हिमालयन रीजन में जाते हैं, हिमालयन माउंटेन्स, फिर देखते हैं कि कितनी देयर इज वास्ट इरोजन। ऐसे लगता है कि भाई इतना तो ह्यूमनली इतने यू नो माइटी माउंटेन्स को कट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट द वे इट हैज बीन डन बाय द नेचर, द इरोजन इज वेरी डीप। सो दो फर्स्ट स्टेज होता है इरोजन का, होता है ये फर्स्ट स्टेज होता है यूथफुल स्टेज। यूथफुल स्टेज में देखिए मैंने डायग्राम में ही सब कुछ लिख लिया है। यूथफुल स्टेज में क्या होता है, रिवर फ्लोइंग करती है और इरोजन होता है। इरोजन क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। मैं जब वीडियो के एंड में ना इसका पूरा 1 पेज का अपना नोट का पिक्चर लगा दूंगी, तो आपको इससे आप वहां से कर सकते हैं। इसमें तो आप बस डायग्राम को समझिए। तो यूथफुल स्टेज है फर्स्ट स्टेज, रिवर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट, वेरी हाई स्पीड है और हाई कैरिंग कैपेसिटी है। जो रास्ते में आया सबको लेके चल दिया है। ऑलराइट, तो ये क्या करेगी, इरोड करती जाएगी, कुछ भी डिपॉजिट नहीं करती जाएगी। तो सेकेंड स्टेज क्या आता है, थोड़ा मेच्योर स्टेज आता है। मेच्योर स्टेज आता है तो थोड़ा डिपॉजिट भी करती है। डिपॉजिट करती क्या करती है, इरोजन तो स्टिल होता रहेगा बिकॉज इसकी जो फेरोसिटी है और वो मतलब थोड़ी कम हुई है, बट इट इज नॉट गॉन, इट्स नॉट कम्प्लीटली गॉन। तो इरोजन, तो रिवर अगर फ्लो कर रही है कुछ ना कुछ तो इरोड करती रहेगी। तो इरोजन इज स्टिल देयर मेच्योर स्टेज में, बट डिपोजिशन, तो डिपोजिशन प्लस इरोजन दोनों हो रहा है। और ये डिपॉजिट क्या कर रही है, इट विल डिपॉजिट ट्रैक्शन। ट्रैक्शन हमने देखा यहाँ पे है, जो लार्ज रॉक्स हैं, बोल्डर स्टोन्स हैं, वो यहाँ मेच्योर स्टेज में डिपॉजिट कर देगा। क्यों, ये देखिए लार्ज स्टोन्स बनाए ना मैंने, क्यों डिपॉजिट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो मेच्योर स्टेज में जाती है और फर्दर इट विल गो, इसकी कैपेसिटी टू टेक लार्ज स्टोन्स विल रिड्यूस। अब उसके अंदर इतनी फेरोसिटी नहीं रही कि वो लार्ज स्टोन्स को अपने साथ रोल ओवर करके ले जाए, तो वो वहीं पे फिर रुक जाएंगे। इतना फोर्स अब रिवर नहीं अप्लाई कर पा रही है उस पर, जो फ्लोइंग वाटर है इतना फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ट्रैक्शन डिपॉजिट, सबसे पहले वो ट्रैक्शन को डिपॉजिट कर, दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे ही नहीं आप इसको इधर कर देंगे तो नो। तो मेच्योर स्टेज में क्या करेगा, सबसे पहले तो ट्रैक्शन लोड को अपना वहीं पे शेड कर देगा, तो ट्रैक्शन डिपॉजिट हो जाएगा। द सेकेंड डिपॉजिट क्या होगा, सॉल्टेशन डिपॉजिट। सॉल्टेशन डिपॉजिट क्या है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये नोट्स में थोड़ा सा इसको लिख लिया था सो दैट यू डोंट फॉरगेट। सॉल्टेशन, स्मॉलर पार्टिकल्स जो बाउंस करके आ रहे थे ना, स्मॉल पार्टिकल्स, ये देखिए ये बोल्डर से ट्रैक्शन से थोड़े छोटे होते हैं, बाउंसिंग देवर कमिंग, ट्रैक्शन डिपॉजिट कर दिया, बट ये अभी यहाँ तक यहाँ पे फ्लो ही कर रहे हैं। अब थोड़ी सी और रिवर की स्पीड यहाँ से यहाँ आते आते कम हो गई है, तो यहाँ पे उसका फोर्स थोड़ा सा कम हुआ है, तो यहाँ पे ट्रैक्शन को डिपॉजिट कर देंगे। ऑलराइट, ट्रैक्शन डिपॉजिट कर दिया, फिर आते 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 थोड़ा सा और उसके फोर्स में कमी आएगी तो सैंड को डिपॉजिट करने लगते हैं। सैंड को डिपॉजिट करने, दैट इज व्हाई यू डोंट सी सैंड्स इन द माउंटेन। वहाँ से तो बहुत फेरोशियस होती है ना, जब प्लेन्स पे आते आते सैंड डिपॉजिट कर दिया, सैंड डिपॉजिट कर दिया।
फिर सैंड के बाद अब क्या आएगा नेक्स्ट, यहाँ पे सिल्ट को डिपॉजिट कर देंगे। तो मेच्योर स्टेज में डिपोजिशन, इरोजन तो हो ही रहा है। जब ये सब डिपॉजिट करने के साथ साथ रिवर इरोड भी हो रही है तो और चीजें कैरी भी कर रही है। तो यहाँ क्या किया, सबसे पहले ट्रैक्शन, देन सॉल्टेशन एंड देन सैंड एंड सिल्ट इन दिस सीक्वेंस डिपॉजिट कर दिया इन द मैच्योर स्टेज। नाउ द थर्ड स्टेज विच विल कम इज ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में क्या होगा, ये देखिए ये पूरा क्ले जो मिट्टी थी वो डिपॉजिट कर रहे हैं ये इसमें। ओल्ड स्टेज में दे विल डिपॉजिट क्ले, और यहाँ पे जनरली ओल्ड स्टेज आते आते उनकी इरोसिव कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। फिर उनकी डिपोजिशन ही, वो क्या इरोड करेंगे, उनके पास इतना फोर्स नहीं रह पाता है, तो डिपोजिशन ही करते हैं। तो क्या डिपॉजिट, यहाँ पे क्ले भी डिपॉजिट कर दिया। क्ले डिपॉजिट करने के बाद जब यहाँ क्ले डिपॉजिट तो अपने साथ ले क्या जा रहे हैं, वो दे आर स्टिल टेकिंग द solution with it, the river is still taking solution with it। जो dissolved salt है वो अपने साथ वो लेकर जाएगी ओशियन में। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये डिपॉजिट कर दिया। फिर द लास्ट स्टेज कम्स विच इज ओशियन। अब मेच्योर, यहाँ से यूथफुल से मेच्योर से ओल्ड में आ गई, अब ये ओशियन में, मतलब अब तो उसको यू नो मोक्षा जैसे हम कहते हैं ना, बुढ़ापे के बाद यू गेट मर्ज इनटू गॉड। तो द रिवर इज गेटिंग मर्ज इनटू द ओशन। इट इज, फिर वहां पे जाके ये जो सॉल्ट अपने साथ डिसॉल्व करके ला रही थी वो ओशियन में इट विल गेट डिसॉल्व, इट विल गेट मर्ज विद द ओशियन। तो ये इसका लास्ट स्टेज होगा। सो दिस यू नीड टू नो कि क्या डिपॉजिट। अब आपने देख लिया क्या डिपॉजिट करती है। अब जो इसने अपने डिफरेंट स्टेज में डिपॉजिशन किया है उसी के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या फॉर्म करेगी यूथफुल। चलिए वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए यूथफुल स्टेज में रिवर क्या फॉर्म, जिसका फॉर्मेशन क्या होगा, और मैच्योर स्टेज में क्या होगा, ओल्ड स्टेज में क्या होगा। एंड व्हेन इट रीचेस टू ओशियन and shores, then what will happen. All right, I will explain this, but you may pause it and then think about it or write in the comment section. So जब river fast flow करती है ना, तो from up to 8 to 10 kilometer there is a Bhabhar region. What is that? Bhabhar region. 8 to 10 किलोमीटर ऑन द फुटहिल, फ्रॉम द फुटहिल्स भाबर रीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तराई रीजन आता है। तराई रीजन क्या होता है, जहाँ पे सैंड और सिल्ट डिपॉजिट। ये भाबर से 8 to 16 किलोमीटर बिलो तराई रीजन आता है, सैंड एंड सिल्ट डिपॉजिट। तराई रीजन क्या होता है कि जब यहाँ पे रिवर जाती है डिसअपियर होके फिर से रीअमर्ज होती है तराई में, यहाँ से यहाँ पे फिर से एमर्ज होती है, वो तराई रीजन होता है। उसके बाद क्या आता है, अलूवियल, फिर अलूवियल डिपॉजिट। अब अलूवियल डिपोजिशन होता है, अलूवियल मतलब जो क्ले डिपॉजिट करती है, दैट इज इन द ओल्ड स्टेज। अलूवियल सॉइल ही तो होती है जो प्रोडक्टिव सॉइल्स होती हैं। तो अलूवियल में भी दो चीजें होती है, एक बांगर और खादर। बांगर क्या होती है, थिकर होती है, ओल्ड होती है, थोड़ा कांकर भी होता है, सैंड और सिल्ट होता है, लेस फर्टाइल होती है, थोड़ी सी लेस फर्टाइल होती है, जो हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में पाई जाती है। ऑलराइट, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ये बांगर सॉइल पाई जाती है, थोड़ी सी यू विल फाइंड इन दी सैंड और सिल्ट तो रहेगा, कंकड़ भी आपको मिलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं थिकर। सॉइल भी थोड़ी थिक होगी तो कांकर बोलते हैं ना। फर्टाइल, ये इतनी फर्टाइल नहीं होती है, तो ये वेस्टर्न यूपी और हरियाणा रीजन में पाई जाती है। देन ल्यूवियल डिपॉजिट जब यहाँ पे करती है, उसका एक दूसरा पार्ट जो होता है वो खादर होता है। खादर क्या होता है, फाइनर होता है, फाइनर सिल्ट होता है, क्ले होता है, जो बहुत ही फर्टाइल होता है। बहुत फर्टाइल तो होता है लेकिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली फ्लडेड होता है। आपने देखा नहीं बिहार में कितना फ्लड होता है, तो इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली फ्लडेड, बट इट इज फर्टाइल।
दी खादर इज वेरी फर्टाइल। तो फिर उसके बाद जब यहाँ खादर, यहाँ पे क्या किया इसने, ये था हमारा भाबर रीजन, भाबर रीजन के बाद तराई रीजन, तराई रीजन के बाद अलुवियल रीजन। आप इसी में सब समझ लीजिए, यहाँ पे आप नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं कि कौन कौन सा रीजन है। और फिर जब यहाँ पे ओशन में जाके मिलती है तो यहाँ पे क्या करती है, ये क्ले डिपॉजिट करके, यहाँ पे क्ले डिपॉजिट करने के बाद रिवर जो है ओशन से मीट करती है तो क्या बनाती है, डेल्टाइक रीजन। यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है एट द शोर ऑफ द ओशन, तो डेल्टाइक रीजन हो जाता है। तो दिस इज अबाउट दी रनिंग वाटर एंड इट्स एसोसिएटेड फॉर्मेशन। इसका फुल पेज का जो मेरा वो है नोट्स है वो मैं एंड में लगा दूंगी, और सो दैट यू नो आपको समझने में जो मैंने एक्सप्लेन किया वो भी आपको मिल जाएगा। यू विल नॉट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू मेक योर नोट्स। So this is all for this video. See you in the next video. Love you all. Please like, share and subscribe. Subscribe now, like now. Thank you. Love you all.